delta H naught minus T delta S naught and नेगेटिव साइन है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है, इन दोनों का अलजेब्रिक सम जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर ऑल द टेम्परेचर और फॉर एनी टेम्परेचर वी चूज। और सेकेंड वाले केस में डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच नॉट इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, delta S naught is also positive. Now in this case, if my T is going to be low, it might happen that delta H naught may be greater than the product of T and delta S naught. It will be, I mean, if we keep on raising temperature higher and higher, we may attain a temperature above which the algebraic sum of this entire thing becomes less than zero. ठीक है, that will happen only when we have raised the temperature to a significant level. Otherwise, for lower temperatures, this delta G naught value is going to be greater than zero. For example, temperature अगर मैं 1 लेता हूँ, 1 Kelvin, तो ये क्या रहेगा? 32,000 32,900 रहेगा और उसमें से 226 को माइनस करूंगा मैं, दिस नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, यानी डेल्टा जी नॉट एट 1 केल्विन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। 2 केल्विन देखता हूं तो दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2, स्टिल नहीं पॉजिटिव। 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ 2265 हो जाएगा, दिस नंबर इज स्टिल गोइंग टू बी नेगेटिव। 100 से करता हूँ, this number is still going to be negative. 200 से करता हूँ, now this time ये नंबर multiplied by this number multiplied by 200 अगर मैं करता हूँ, तो this is something which is going to come 453000. Now this number is definitely greater than this number, the first one. इन दोनों को का algebraic sum मतलब इंक्लूडिंग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब मेरा रिएक्शन 200 केल्विन पर डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस हो गया है, फॉरवर्ड फेवर्ड हो गया है। ठीक है, we need to find a temperature at which this reaction will become forward favored, or like the temperature zone, any temperature above that temperature it is going to behave as forward favored, right? So for that what we need to do is just go back to the next page. This is A and B. Delta H naught is given to be 32.9 kilojoule per mole, which is equal to 32900 joules. Delta S naught is equal to 226.5 joule per Kelvin. इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। For spontaneous forward favoring, delta G naught is equal to delta H naught minus T delta S naught should be less than 0. This implies
delta G naught 3 to 900 minus T into 226.5 should be less than 0. Solving this, we get this implies 32900 should be less than 226.5 T. That implies T should be greater than 32900 by 226.5. इस चीज को सॉल्व करके लिख लेंगे. It's going to be roughly 140 के आसपास 145 के आसपास होना चाहिए कुछ तो वैल्यू. तो 900 145.25 is the value. 145.25 is the value. So the second reaction is going to be, this reaction will be spontaneous for any temperature greater than this, right? This reaction will be spontaneously forward favored for temperature greater than 145.25 Kelvin. Is it okay? ये बात समझ में आई हम लोगों को? ओके, नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन. ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा मतलब नोट कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ. दो टर्मिनोलॉजीज थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है. नोट हो गया? हो जाए तो बता देना. Noted. Yes, sir.
और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग दो चीजें यूज करते हैं, एक तो मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क, ठीक है, और दूसरा मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ठीक है। एंड दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इसका मतलब होता है मैक्सिमम वर्क की जब हम बात कर रहे हैं, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल वर्क बिटवीन एनी टू स्टेट्स, रिवर्सिबल वर्क between any two given states, given thermodynamic states, thermodynamic states. Is it okay? Yes, Maximum work is always going to indicate you the reversible work between any two given thermodynamic state, whereas maximum useful work is equal to maximum useful work. This is going to indicate us free energy change, free energy change between two thermodynamic states. Is it okay? Hello. yes, sir. ठीक है. So whenever we are talking about just maximum work, it means I'm or the question is interested in knowing the reversible work between the two states, whereas maximum useful work is something which is actually asking you to calculate the free energy change during the process. ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम यूजफुल वर्क नहीं यूज किया गया है, मैक्सिमम वर्क यूज किया गया है। दैट मीन्स मुझे रिवर्सिबल वर्क निकालना है। क्लियर है ना? मतलब वहां पे प्रोसेस दिया नहीं रहेगा कि अलग से कि इट इज रिवर्सिबल, बस ये बोला रहेगा मैक्सिमम वर्क निकालिए। इसका मतलब मैक्सिमम वर्क तभी होता है जब रिवर्सिबल वर्क होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है ना? एक्सपेंशन प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क तभी आता है जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल रहेगा तो मैक्सिमम वर्क नहीं आएगा। बात समझा? Yes, sir. वेरी गुड। सो यहाँ पर प्रेशर ऑन 10 ग्राम ऑफ H2, तो 10 ग्राम ऑफ H2 का मतलब क्या हो गया? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर देयर? 5 मोल्स। ठीक है। Pressure is being reduced from 20 atm to 1 atm at a constant temperature of 300 Kelvin. Q delta E delta H भी हमको निकालना है इस प्रोसेस के लिए। It's not going to be much difficult. Will there be any delta E? T is equal to constant. T is equal to 300 Kelvin and constant, right? P2 is equal to 1 atm and P1 is equal to 20 atm. P2 is 1 atm and P1 is 20 atm. ठीक है. N is equal to
5 moles. So delta U या delta E जो है that is going to be, or delta E, this is going to be NCV dt. ठीक है, integral. Now dt is 0, therefore this is going to be 0 as dt is 0. ठीक है. Next thing is work done. Work done क्या होगा? This is going to be minus p dv integral. तो minus p को nRT by v से रिप्लेस किया, dv is equal to minus nRT ln v2 by v1, right? या फिर minus nRT p1 by p2. Integral is a sign. Actually integral is an operation. जैसे प्लस माइनस करते हो ना, सब्ट्रैक्ट, ऐड, डिवाइड, उसी तरीके से इंटीग्रल जो होता है वो एक ऑपरेटर होता है. उसके बारे में अब मैथ्स के अंदर यू गाइस आर गोइंग टू स्टार्ट स्टडीइंग. हाइपरबोला विल गेट ओवर नेक्स्ट वीक. फर्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा हाइपरबोला, एंड उसके बाद से यू विल बी स्टडीइंग दिस थिंग कैलकुलस. उसमें इंटीग्रेशन आएगा. ठीक है. सो इसमें कुछ चीजों के बारे में हमको जानना है, जैसे dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन अगर है, दिस इज गोइंग टू बी नेचुरल लॉग एक्स. ठीक है. यहाँ पर अब वेरिएबल कुछ भी हो, जैसे dv बाई v, इसका इंटीग्रेशन रहेगा तो दिस विल बिकम ln v. dp बाई p रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन विल बिकम ln p. और यहाँ पर मान लो वैल्यू a और b लिखा हुआ है, या यहाँ पर c एंड d लिखा हुआ है, we write it like this: c and d, c and d, a and b इस केस में. और यहाँ पर मान लो e and f लिखा हुआ है, तो दिस विल बिकम e and f. इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग करते क्या है, जो ऊपर वाला वैल्यू है वो यहाँ पर पहले डालते हैं, तो दिस विल बिकम ln d माइनस ln c. दिस इज ln d बाई c. ये वाला चीज को इवैल्यूएट करने के लिए सिमिलरली इट विल बी ln b माइनस ln a which is ln b by a. सब केस में यही हो जाएगा, एंड इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ln f बाई. ठीक है. अब ये हुआ dx बाई x, लेकिन अगर x dx रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज. dv बाई v का इंटीग्रल इज ln v. अगर v dv रहता तो इसका इंटीग्रल जो होता दैट वुड हैव बिकम v स्क्वायर बाई 2. ठीक है. और इसका जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. और ये अगर a एंड b के लिमिट्स में है, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स a to b. So this is going to be equal to b to the power n plus 1 by n plus 1 minus a to the power n plus 1 by n plus 1. ठीक है. सो ये एक्स स्क्वायर का सिमिलरली अगर यहाँ पर साइन एक्स होता dx, तो दिस वुड हैव बिकम माइनस कॉस एक्स. माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होएगा, क्योंकि साइन कॉस एक्स का डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, और डिफरेंशिएशन जो होता है इंटीग्रेशन का,
इनवर्स प्रोसेस होता है। सिमिलरली cos x का इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी sin x एंड सो ऑन सो फोर्थ। बाकी फंक्शंस आप लोग उसके अंदर में सीखोगे। सो इसको एक बार ये चीजें नोट कर लो फटाफट, जब बता चुका हूँ तो एक बार नोट भी कर लो। हो गया सिरिल, इसको नोट कर लो फट जल्दी से। यहाँ पर द प्रेशर रेंजेस आर 20 atm टू 1 atm, ठीक है, 20 atm टू 1 atm। यहाँ पर लिमिट इज 1 atm and this is 20 atm। ठीक है, सर डन। ओके। यहाँ पर भी 20 atm टू 1 atm। अब वैल्यू प्रेशर के टर्म्स में है तो अब वैल्यू डाल के इवेलुएट करना है सर। एन आर टी एल एन P1 by P2, this is equal to 20 by 1, ठीक है। And it is going to be 20 by 1। ये लिखना यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको रहने देते हैं। ये फाइनल एक्सप्रेशन के टर्म्स में P2 P1 by P2, P1 is 20 atm, P2 is 1 atm, so this is going to be, and बाकी NR जो है उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। This is -5 into 300 into R, so 1500 ln 20 minus 1500 ln 20 is our answer। फर्दर इसको सॉल्व करना है तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1500 ln 10 plus ln 2, ठीक है। ln 10 जो होता है दैट इज इक्वल टू 2.303, ln 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.7691, ठीक है। And therefore this will become 1500 into no 2.994 or almost 3, ठीक है। So this Sir, will have be you missed the R which was R. there? Yes, I have missed R, no doubt about it, I have simply missed R। So -4500 R is our answer। कैलोरी में निकालना है तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -9000 कैलोरी आ जाएगा। जूल्स में निकालना है थोड़ा मुश्किल रहेगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। आर की वैल्यू 8.314 रहेगी तो दैट इज देयर।
Noted. Yes, sir. Okay. Question number 5 is, for the given reaction, that is C diamond to C graphite, delta S at 300 Kelvin is 10 calorie per Kelvin. Okay. And for the reaction, carbon diamond plus oxygen giving us CO2, delta H at 300 is minus 91 kilocalorie per mole. And for graphite, converting into dioxide is x kilocalorie per mole. Now we need to find the value of x. ठीक है? What should we do to find this? ये रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है? ये रिएक्शन हमारे पास है फॉर नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट वाला रिएक्शन दिया हुआ है। दिस इज नॉट वेरी मच एविडेंट। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में और एक्सप्लेनेशन मतलब दो चार वर्ड्स और लिखे हुए होने चाहिए थे, मैं लिखना रह गया है। When I'm reading it for second time, I'm realizing कि the question is not complete. So this basically wants to tell us, या हमसे बेसिकली ये पूछने की कोशिश किया जा रहा है, जिस थॉट ऑफ माइंड से मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था वो ये था कि the forward reaction, this forward reaction is spontaneous at 300 Kelvin. ठीक है? So the moment we say that this is spontaneous at 300 Kelvin, that means delta H at 300 Kelvin, ठीक है ना, for this process must be less than T delta S at 300 Kelvin, so that delta H minus T delta S should become equal to, should become less than 0. ठीक है? Less than or equal to 0. इक्वल टू जीरो जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को इंडिकेट करता है, और जीरो से कम रहेगा डेल्टा जी का वैल्यू, मतलब ओके, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और फॉरवर्ड फेवर्ड। ठीक है? सो अब 300 केल्विन पर हमारा डेल्टा एच कैसे निकलेगा इस कन्वर्सन का? So that is going to come from these two equations. Delta H 300 Kelvin दिया हुआ है ये, और दूसरे वाले का ये दिया हुआ है। तो पहले वाले के साथ दूसरे वाले रिएक्शन को रिवर्स करके अगर हम ऐड करते हैं, if I reverse this equation and add it with first equation, I'm going to get delta H of this reaction, right? And that is going to be how much? Minus 91 kilocal minus x kilocal. ठीक है? So it is simply minus 91 plus x into 1000 calories, and this should be less than or equal to, actually less than T into delta S, which is 10 calorie.
10 से 10 को डिवाइड किया. नाउ टेम्परेचर इज 300, ये भी मेंशन्ड है, टेम्परेचर 300 है. सो ये बाकी दो भी इससे कैंसिल हो जाएंगे. नाउ -91 प्लस x should be less than 3. That is the condition. इसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? x has to be -x है, इसको इधर लेकर के आएंगे प्लस x हो जाएगा, और 3 को इधर लेकर के आएंगे तो x should be greater than or equal to -94 किलो कैल. ठीक है, तो x की वैल्यू कम से कम -94 होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा हो सकती है. तो द आंसर इज -94 किलो कैल. ठीक है, this process is going to take place, or for this process to happen, the ये, delta H of the second reaction has to be -94 किलो कैलोरी, या -94 किलो कैलोरी से कोई भी बड़ी वैल्यू हम ले सकते हैं. ठीक है, are we getting this point? I would actually rather like to complete this question. इसको आप लोग नोट तो कर चुके होगे, उसमें ये एक चीज लिख लो. फॉरवर्ड to be at equilibrium what should be, I mean the value of x is, the value of x should be such, or u should be, यहाँ से इसको हटा देते हैं. This was, we understood this question now. इसमें कोई इशू नहीं है ना? हेलो. Enthalpy of combustion for diamond at 300 Kelvin is -91 kilocalorie. That is for graphite is x kilocalorie. Then for C diamond to C graphite at 300 Kelvin to be at equilibrium at 300 Kelvin, the suitable value of x should be. तो suitable value of x equilibrium पर होने का मतलब क्या हुआ? The delta G should be equal to 0. यही इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन होता है ना. स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0, एंड इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू 0. दैट मींस डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. राइट, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी डेल्टा जी शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज डेल्टा एच शुड बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. ठीक है, तो ये करके हम डेल्टा एच ऑफ दिस प्रोसेस कैन कैलकुलेट कर लेंगे, और ये आने के बाद फिर एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसका एच जो है इन दोनों के एच से रिलेट हो सकता है. राइट, बात समझ में आ रही है? ठीक है, Yes, sir. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो फिफ्थ वाला का सॉल्यूशन जो होगा, फॉर्मल सॉल्यूशन, दैट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस.
C diamond, yeah, plus O2 giving us CO2 gas. Delta H 300 Kelvin is equal to minus 91 kilocal. Delta graphite, sorry, carbon graphite plus O2 gas giving us CO2 gas. Delta H 300 Kelvin is equal to X kilocal. X kilocal. So this now becomes C diamond to C graphite. Graphite uh, is equal to delta H, and this can be called as maybe delta H2 and ये delta H1. डेल्टा H2 डेल्टा H1 दोनों 300 केल्विन पर है। यहाँ पर 300 केल्विन 300 केल्विन नोट कर सकते हैं। This is going to be equal to delta H at 300 Kelvin for this reaction is simply equal to delta H1 300 Kelvin minus delta H2 300 Kelvin. That is minus 91 minus X किलोकैल। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा S at 300 Kelvin is 10 calorie. Therefore, for equilibrium, delta G should be equal to 0. That implies delta H should be equal to T delta S, implies minus 91 minus X should be equal to this should be equal to 300 into 10 uh, divided by 100 1000 कर लेते हैं. This is 3. So minus 91 minus X should be equal to 3. That implies X should be equal to minus 94 kilocal. Sixth one is calculate delta G for conversion of limestone to quicklime, that is CaCO3 to CaO and carbon dioxide at 1000 degrees Celsius. The pressure of carbon dioxide is this much atm. Delta H naught at सर ये 29. 76 क्वेश्चन है ना? हाँ, delta H naught is equal at 298 is 177.9 kilojoule. Delta S naught is this much. The reaction becomes more spontaneous or less spontaneous compared to standard state conversion. Also calculate delta G naught and equilibrium constant of this reaction. यहाँ पर actually फिर से मैंने the statement it should read something like this. Wait. नहीं 76 नहीं है, कुछ दूसरा क्वेश्चन है.
अच्छा ठीक है, उसमें वो जो सीट आप लोगों को भेजा है उसमें 76 ही होगा ये। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस ऐड किए हैं मैंने। और इसमें मतलब मेरे सीट में ये 90 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर statement should be, I mean, it should read something like this. So just if reaction becomes more spontaneous at a standard state conversion at this condition. So basically standard state conversion जो है इसका, इस प्रोसेस का, उसके कंपैरिजन में ये जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, इस कंडीशन में वेदर इट इज मोर स्पॉन्टेनियस या लेस स्पॉन्टेनियस है, ये हमको पता करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज समथिंग which I would let you know. So question 6 has to be read something like this rather than what it is given there. It should be so CaCO3 solid being heated to CaO solid and CO2 gas। ठीक है, इसका डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है एट 298,177.9 किलो जूल एंड डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 161 जूल पर केल्विन। ठीक है, सो इस प्रोसेस का डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ठीक है ना, that is 177.29 minus T, that is 298 into 161 divided by 1000 कर लें, so that everything will be in kilojoules, right? This value is going to be 298 into 161 divided by 1000, that is 47.98. So this is going to be 177.29 298 into 161 47.98 177.29 minus 47.98 177.29 minus 47.98, that is 129.31 kilo joule. Now clearly स्टैंडर्ड स्टेट में
एब्सोल्यूट लेवल पर अगर हम देखते हैं, एब्सोल्यूट लेवल पर देखते हैं, तो डेल्टा जी ऑफ जी नॉट क्या है हमारा, 129.31 किलो जूल है, राइट। नाउ दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। इज इट ओके? अब Yes, sir. हमको देखना क्या है, एट 1000 डिग्री सेल्सियस इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट डूइंग दिस प्रोसेस एट 298, वी आर डूइंग इट एट 1000 डिग्री सेल्सियस, and that too at a condition where pressure of carbon dioxide is just this much, ठीक है। So we have a broader relationship, delta G is equal to delta G naught plus RT ln Q, right? And Q was, इस वाले कंडीशन में it is just going to be the pressure of CO2 सॉलिड्स के लिए। जब भी Q हमको लिखनी होती है तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो होता है ना, वो चेंज नहीं करता है विद टाइम, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स कैन नॉट चेंज। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास बाय वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम या मोल्स बाय वॉल्यूम ही होता है ना। Yes, Molarity sir. is moles by volume, that is density also. Sorry, mass by volume is density and moles by volume is concentration. तो डेंसिटी अगर चेंज नहीं कर रही है मतलब मोलारिटी भी चेंज नहीं करेगी। अगर मास बाय वॉल्यूम रेशियो अगर कांस्टेंट है, मतलब मास बाय मोलर वेट का रेशियो, मास बाय मोलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का रेशियो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और नॉन चेंजिंग वैल्यूज अगर रहती हैं तो दे आर जनरली कंसिडर्ड वन इन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो इक्वेशन होता है उसमें उसकी वैल्यू को वन ले लेते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करना है, या 5 को कांस्टेंट कहीं पर भी एक ले लेना, और उस कांस्टेंट को राइट साइड में ना रख के इक्वेशन के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और के इक्विलिब्रियम जो होता है उसके कंसंट्रेशन को इंक्लूड करके रहता है, ठीक है। दैट इज हाउ द इंटरप्रिटेशंस आर। वी आर गोइंग टू डील विद दिस इन नेक्स्ट चैप्टर मोर थॉरोली। अभी के लिए लाइक आर टी एल एन क्यू, और क्यू में सिर्फ गैसियस का लेंगे, इनका 1 and 1 लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रेशर ऑफ CO2, एंड इससे हमको मिल जाएगा 129.129 310 plus R is 8.314 into 1273, 1000 degree Celsius is 1273 into ln. The partial pressure of CO is 0.0033 atm, ठीक है। सो इस चीज को रख लेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज, ये तो पॉजिटिव है, ये वाले टर्म में ये वाला टर्म जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है। लेट मी डू इट वंस। ln 0.0033, this is minus 5.7138 into 8.314 into 1273. To 1273 to 8.314, that is equal to, the value is 129.310.
minus this number is 60447 and 3. ठीक है, therefore delta G की वैल्यू जो होगी at this situation, it's going to be plus 12, 13, 10, 68836 किलो जूल अप्रोक्सीमेटली। ये 7 ले लेते हैं, 7 जूल approx. ठीक है, now is this is equal to, this can be further written as 68.8, sorry, this is joules and this is kilojoules. ठीक है, तो देखो डेल्टा जी जो है that is less than delta G naught. Is it okay? Delta G is less than delta G naught. स्टैंडर्ड स्टेट में ये रिएक्शन जितना फेवर्ड है, जिस परसेंट तक या जिस लेवल तक फेवर्ड है, उसके कंपैरिजन में इस नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इट इज गोइंग टू बी मोर फेवर्ड. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर डेल्टा जी मेरा डेल्टा जी नॉट से छोटा है, दैट मींस जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं उस कंडीशन में दिस रिएक्शन इज मोर फेवर्ड कंपेयर टू इट्स स्टैंडर्ड स्टेट. एम आई मेकिंग सेंस? और अगर डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी नॉट से बड़ी होती है, इसका मतलब क्या हो जाता? दिस इज लेस फेवर्ड, दिस इज फर्दर लेस फेवर्ड, एंड दैट सिनेरियो इज ट्रू ऑल्सो विथ अगर इनके पास निगेटिव साइन होता. ठीक है, मतलब कोई एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नॉट जो है वो -50 किलो जूल्स है, और उसी रिएक्शन का डेल्टा जी एट सम अदर कंडीशन इज सपोज -30 किलो जूल. तो इस कंडीशन में ये स्टैंडर्ड स्टेट के कंपैरिजन में क्या है? लेस फेवर्ड है, राइट? क्यों? क्योंकि डेल्टा जी जो है वो इंक्रीज कर गया है -50 से. उसको करना क्या चाहिए था? और फर्दर डिक्रीज करता, राइट? तो दिस वुड हैव बीन, द रिएक्शन वुड हैव बीन मोर फेवर्ड. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ठीक है, सो दैट इज समथिंग. ये इस चीज को प्रैक्टिकली स्टैब्लिश करने के लिए डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेटिव रिलेशनशिप जो है, दैट इज आई मीन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू डिसाइड कि हम किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. और डेल्टा जी नॉट हमारा ये आ गया है, इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के. ठीक है, कैन वी सॉल्व इट? इसको तो सॉल्व कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक सेकेंड दो. और इट इज गोइंग टू बी लाइक सेवेंथ का ए. ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन हम लोग? Yes, sir. ओके, सेवेंथ वाले में हमारा प्राइम कंसर्न, प्राइमरी चीज जो हमसे पूछी गई है, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जो है Al2O3 का दिया हुआ है, और डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन जो है वो Na2O का दिया हुआ है. These are the two informations which has been given, I believe. Al2S4 and Na2 solid. हाँ, and the values are -1582 kilojoule. This value is -1582 kilojoules, and delta G naught formation of Na2O solid is -377 kilojoule per mole, and ये भी per mole. देखो
इसमें क्या है कि सोडियम इज रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू एल्यूमिनियम, ठीक है। दैट मीन्स व्हेन आई रिएक्ट सोडियम सॉलिड विथ Al2O3, what comes as a result is Na2O plus Al, ठीक है। अब ये रिएक्शन अगर ध्यान से देखेंगे, वी रिक्वायर 6 ऑफ दिस with 1 of this to produce 3 of this and 2 of this, ठीक है। कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे फर्क कुछ ज्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा फर्क तो पड़ता है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका ये पर मोल है दिया हुआ, और इसका पर मोल फॉर्मेशन एनर्जी जो है वो दिया हुआ है 377, ठीक है ना, -377। और इस पूरे प्रोसेस का डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ Na2O solid plus delta G naught formation of Al solid। और इसमें ऑब्वियसली मोलर वाली वैल्यू अगर लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर लेना होगा हमको। दिस इज द प्रोडक्ट साइड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट साइड फ्री एनर्जी एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें से हम लोग रिएक्टेंट साइड के फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So this is going to be 6 into delta G naught formation in a solid, ठीक है, plus delta G naught formation of Al2O3, Al2O3 solid। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसका 1 मोल है इसलिए एज इट इज लिख लिया है, इसका 3 मोल है 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है, इसका 6 मोल है 6 से मल्टीप्लाई कर लिया है, इसका 2 मोल है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर टिल दिस पॉइंट? इसकी वैल्यू रख लेंगे 3 इंटू -377, इसकी वैल्यू होगी लड्डू, ठीक है। क्यों लड्डू होगी? क्योंकि एल्यूमिनियम अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसके लिए फॉर्मेशन फ्री एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्टेट में है वो, ठीक है। इसकी वैल्यू भी सिमिलर तरीके से लड्डू, और इसकी वैल्यू क्या होएगी? -1377, सॉरी 1582, -1582। इज इट ओके? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी किसके एक से -1133 प्लस 1582। और ये वैल्यूज में कुछ लफड़ा हो रहा है क्या? एक सेकंड रुक जाओ तो। at स्टैंडर्ड स्टेट, तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? दिस इज इक्वल टू सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। कितना रहेगा? 451 किलो जूल। दिस इज व्हाट? दिस इज पॉजिटिव। विल इट बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? हाँ, इट्स गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यस सर, यस सर। ओके, सेकेंड पार्ट में वी हैव
delta H naught and delta S naught to be independent of temperature. Okay. Uh, the second question is, or B part is delta H naught, delta S naught to be independent of temperature, or assuming this to be independent of temperature, will this reaction be spontaneous at 1000 Kelvin? If not, at what temperature will this reaction become spontaneous is something which we are interested to know. ठीक है? So, uh, copy this one. B वाला part, तो यहाँ पे solve करते हैं. So, delta H naught और delta S naught दिया हुआ है. What we need to just do is डेल्टा जी निकाल लेंगे. पहले तो डेल्टा जी नॉट निकाल लेंगे. डेल्टा जी नॉट क्या रहेगा इसका? दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एस नॉट. डेल्टा एच नॉट दिया हुआ है इज 180.8 किलो जूल माइनस टी डेल्टा एस दैट इज नॉट दिया हुआ है, तो 298 की बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं. एंड फिर हम लोग उसको 1000 कैल्विन के ऊपर में ये कर सकते हैं. सो डेल्टा जी नॉट एट 298 जो है दैट इज 180.8 किलो जूल माइनस 298 इंटू, यहाँ से डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन हम निकाल सकते हैं. डेल्टा एस नॉट प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, दैट इज 2 इंटू 210.5 माइनस 191.4 प्लस 204.9. ठीक है. 421 माइनस, इनको ऐड करेंगे 13 4 5 6 9 3 396 हो गया. सो दिस इज गोइंग टू बी 21 प्लस 3.7 24.7 जूल्स पर केल्विन. ठीक है. 298 इंटू 24.7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर लेंगे सो दैट इट बिकम्स किलो जूल्स. द वैल्यू इज गोइंग टू बी एट 298. डेल्टा जी नॉट क्या होगा? 180.8 माइनस 298 इंटू 24 बाई 298 into 24.7 divided by 1000, 7.36 और 7.4 ले सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 173.4 हो गया किलो जूल. क्लियरली 298 पर ये प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है. अब दूसरी चीज, डेल्टा जी नॉट एट 1000 केल्विन क्या होगा? यहाँ पर देखो, एक छोटी सी चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है. वी हैव टू अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मतलब ये वैल्यू जो 298 के लिए है वही वैल्यू, यानी डेल्टा एच नॉट 298 इज सेम एज
delta H naught 1000. That's not changing. Is it really true? Definitely not. But इस conditions में basically ये assume करने के लिए दिया हुआ है. The reason for this assumption is it might be the case that not for this reaction but for many reactions it happens that the variation of delta H is not very strongly dependent on temperature condition. Are we getting this point? In some of the reaction, delta H of the reaction may not be very strongly dependent to or may not be very strongly dependent on temperature changes. ठीक है? और उस condition में we can very safely assume that 298 and 1000 Kelvin पर लगभग बराबर या थोड़ा सा slight difference रहेगा but लगभग बराबर ही value रहेगी. ठीक है? That is what we are assuming over here. And then we are trying to calculate delta G naught at 1000 Kelvin. This is going to be this minus 298 के बदले it is going to be 1000 into 24.7 divided by 1000. ठीक है? This time it will become 153 point 156.1 kilojoule. ठीक है? It has decreased, but it is yet not concretely this thing. क्या बोलते हैं? Spontaneous नहीं है. Now we are looking for a temperature at which it will be spontaneous. For spontaneity, for spontaneity, T will be or would be T would be equal to this delta H divided by delta S. T should be greater than this delta H divided by delta S naught, right? Yeah, delta H by delta S. So that means it is going to be T should be greater than, that implies T should be greater than 1808 into 1000 divided by delta S, that is 24.7. इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी टेम्परेचर बहुत हाई आएगा 0.8. It's coming out to be 7300 19.8 Kelvin. So it is going to be spontaneous only above 7300 approximately 20 Kelvin. It will become spontaneous at something around 7320 Kelvin. And then the last part is we have to find the determine the value of equilibrium constant at 100 degrees Celsius for this particular reaction. So
the reaction over here is डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच नॉट दोनों दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट दिया हुआ है. सो डेल्टा जी नॉट एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है. यहाँ पर दिया नहीं हुआ है बट यहाँ पर भी एक चीज अंडरलाइंड है और वो अंडरलाइंड चीज ये है कि द variation of delta H naught and delta S naught has not to be considered. ठीक है. The variation of delta H naught and delta S naught with respect to temperature can be or should be not considered. ठीक है. Are you getting this point? Yes, sir. यहाँ पर not considered. अब मान लो देखो दो चीजें like मोस्ट ऑफ द केसेस में यू हैव टू कंसिडर दैट इट इज नॉट, बट रियलिटी में क्या होगा ना, अगर एक्चुअल कंडीशंस की बात करें, दिस इज अ गैसियस सिस्टम, ये सॉलिड नहीं है. एंड जो सॉलिड सिस्टम नहीं होता है उसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा एस का वेरिएशन जो होता है ना, दैट इज देयर टू एन एक्सटेंट, बट द टेम्परेचर इज नॉट वेरी डिफरेंट. 25 से 100 डिग्री सेल्सियस चेंज, 70 डिग्री सेल्सियस का चेंज है. 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा वेरी करके नहीं चेंज होएगा. डेल्टा एच अगर वेरी करने जाएगा या डेल्टा एस भी वेरी करने जाएगा सबका, तो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होएगा. एंड मोर ओवर, ठीक है, अगर चेंजेस कैलकुलेट करने जाएंगे हम लोग, इसमें जो चेंज होगा और इसमें जो चेंज होगा और इसमें जो चेंज होगा, ये सारे चेंजेस प्रोपोर्शनल होंगे. और डिफरेंस फॉर द रिएक्शन जो होएगा ना, इधर का जो चेंज होकर के होगा, इधर का जो चेंज होकर के होगा, इधर का जो चेंज होकर के होगा, इसका माइनस इन दोनों के सम का डिफरेंस जब लेंगे, वो नलीफाई कर देगा इफेक्ट को ऑलमोस्ट. ठीक है. इनका इंडिविजुअल लेवल पर चेंजेस होएगा, बट स्टोइचियोमेट्री इस इक्वेशन की आज नहीं है, उसमें बकेट में लेकर हाँ तब, ठीक है. द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन इज सच दैट the right side का delta H variation will exactly cancel the delta H variation of left side. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है. And therefore we can very safely assume that delta H naught at 298 and at 100 degrees Celsius is almost same for the process. So is the delta S naught, and therefore we can apply this relationship. Delta H naught की 298 की वैल्यू माइनस 26900 माइनस टेम्परेचर 373 केल्विन इंटू 11.3. ठीक है. So this will become we can solve it and equate it to minus RT ln K, right. डिवाइड कर लेते हैं अगर हम, दैट एम्प्लाइज -26900 divided by RT 8.314 into 373 minus 11.3 divided by R 8.314 is equal to ln K. Further solving, it is going to be 26900 divided by 8.314 divided by 373.
this is 8.674 minus 1.359 is equal to LMK 674 minus 1.359 is equal to 7.315. That implies K is equal to e to the power 7.315. Raised to the power 7.315. That is 1498 approximately is the value. Equilibrium constant is going to be equal to 1498. ठीक है? Are we getting this problem? Yes, sir. Okay. Minus 31.1 kilojoule. हाँ, ठीक है. This should be added up to get delta G is equal to minus 31.1 ही आएगा लगभग. इक्वेट करेंगे 1498 आ रहा है. ठीक है. You can just note it down.